Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav, and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर है मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों पर, साथ ही बात करेंगे बीएसई और एनएसई की। लेकिन आज तो रविवार है और जैसा कि श्रोताओं आप जानते हैं, हर रविवार खास तौर पर हम समर्पित करते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए। आज भी म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी आपके सवाल हो, बेहिचक हमसे पूछिए। 3 टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 23 31 44 44, 23 42 1050 और 23 310 464। तीनों नंबर दिल्ली के 011 एसटीडी कोड के साथ नंबर डायल करें, अपने सवाल को पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट मंत्रा में। Thank you. And now let's begin today's edition with the headlines in English. Yes, Harsh. First, the headlines. Prime Minister Narendra Modi urges Indian entertainment and creative industry to be a part of the Waves Summit next year. Domestic markets to focus on auto sales data and global markets for Qs next week. And foreign investors pump in over 22,000 crore rupees into the Indian capital market in December so far. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 के आखिरी मन की बात कार्यक्रम की 117वीं कड़ी में भारतीय मनोरंजन और क्रिएटिव जगत के लोगों का आह्वान किया कि वे अगले साल होने वाले वेब समिट का हिस्सा बने। घरेलू शेयर बाजारों की अगले सप्ताह ऑटो सेक्टर की बिक्री आंकड़ों और वैश्विक बाजारों के रुझानों पर नजर रहेगी। और विदेशी निवेशकों ने दिसंबर महीने में अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। सबसे पहले आज की स्टोरी, पहली मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, वैभव? Prime Minister Narendra Modi today said that the popularity of Indian animation films, regular films and TV serials shows how much potential India's creative industry has. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi noted that this industry is not only contributing to the country's progress, but also taking the economy to new heights. He congratulated the film and entertainment industry because it has strengthened the sentiment of Ek Bharat Shresth Bharat. In 2024, the nation is celebrating the 100th birth anniversary of many great personalities of the film world. He said that Raj Kapoor introduced the world to the soft power of India through films, while Mohammad Rafi's voice had that magic which touched every heart. Mr. Modi said, Akkineni Nageswara Rao has taken Telugu cinema to new heights, and Tapan Sinha's films gave a new vision to the society. Prime Minister was pleased to share that for the first time the World Audiovisual Entertainment Summit, Waves Summit, is going to be organized in India next year. He said that during the Waves Summit, giants from the media and entertainment industry and people from the creative world will come to India. He said that this summit is an important step towards making India a hub of global content creation. He expressed pride that young creators of the country are joining with full enthusiasm in the preparations for this summit. He stated that as India is moving towards a $5 trillion economy, the creator economy is bringing in new energy. He urged the entire entertainment and creative industry of India to be a part of the Waves Summit. Speaking about success stories, Mr. Modi mentioned the vegetable revolution in Kalahandi, Odisha. He said that the Golamunda block of Kalahandi has become a vegetable hub. A small group of 10 farmers established a farmers producer organization, FPO, called
Kisan Utpad Sangh and started using modern technology in farming. Today, the FPO is doing business with crores and more than 200 farmers are associated with this FPO, including 45 women farmers. और चलते हैं, हमारे साथ दो कॉलर्स जुड़े हुए हैं. सबसे पहले चलेंगे राकेश के पास, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए. राकेश, बहुत बहुत स्वागत आपका. क्या सवाल है, पूछ लें. मैं आपका प्रोग्राम पिछले 7-8 सालों से सुन रहा हूँ. कल भी फोन लगा था और आज बस 2 दिन ही लगाया मैंने. जी, पूछें सवाल. म्यूचुअल फंड से संबंधित अपने सवाल पूछें. मेरे 2 सवाल है, कृपया आप इनको जवाब अच्छी तरह देना. मेरा एक पहला सवाल ये है कि ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं इसमें तो शेयर भी होते हैं, जो म्यूचुअल फंड लेते हैं, नंबर ऑफ कंपनीज होती हैं. तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें अगर किसी कंपनी ने बोनस दिया या डिविडेंड दिया तो वो हमारे को एलोकेशन कैसे होता है, मतलब वो. और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी जो 1.5 साल पहले म्यूचुअल फंड लिए, अभी थे, मैंने उनकी वैल्यू 8% से 2% ही डाली. तो क्या ये 8-10 साल के लिए मैं रखूं तो ठीक रहेगा? जी ठीक है, धन्यवाद. राकेश जी, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं आकार. राकेश जी, देखिए, जो सबसे पहले आपका सवाल था कि आपका जो भी शेयर्स पोर्टफोलियो में होते हैं उनमें जब कुछ बोनस मिलता है या डिविडेंड मिलता है तो वो आपको कैसे एलोकेट होता है. देखिए, म्यूचुअल फंड्स में 2 तरह के प्लान होते हैं जो कि आमतौर पे हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप ग्रोथ प्लान लीजिए. उसमें जो भी अंदर पोर्टफोलियो में आपके शेयर से म्यूचुअल फंड कंपनी को बोनस या डिविडेंड्स जो भी मिलता है वो आपकी जो एनएवी होती है वो उसी में रिफ्लेक्ट हो जाता है. जो भी क्योंकि एक एनएवी का जो फॉर्मूला होता है वो दिन के आखिर में आपके जो भी उस पोर्टफोलियो के पूरे असेट्स हैं उनका टोटल करके बनाया जाता है. तो चाहे वहां से जो आपका शेयर की वैल्यू है वो बढ़ के हो या उनमें से किसी शेयर ने कुछ एक डिविडेंड दिया हो उसके वजह से बढ़े हो, वो सब के सब आपके उसी एनएवी में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. तो आपके एनएवी के जरिए आपको मिल जाते हैं. दूसरी चीज, आपका जो क्वेश्चन था कि आपको 1 साल पहले आपने एक फंड खरीदा था और उसने लगभग कुछ 8-9% का रिटर्न दिया है अभी. तो देखिए, आप उसको, आपने एग्जैक्ट मेरे को फंड का नाम नहीं बताया तो मैं ज्यादा उस पर नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आमतौर पे जो भी एक इक्विटी फंड होता है और 8-9% दिया है आपको रिटर्न, तो ऑलमोस्ट सेंसेक्स के बराबर है. कुछ बहुत ज्यादा ऐसा कुछ वो नहीं है. आप बने रहिए, लंबे समय के लिए बने रहिए. इक्विटी में हमेशा कम से कम अपनी अवधि 5 साल की रखनी चाहिए. And we have a next caller from Delhi as well. We have Yogesh joining in. Yogesh, welcome to Market Month. Please ask your question. जी नमस्कार आप सभी को, मार्केट मंत्र की पूरी टीम को, और सर आपको आने वाले साल के लिए भी विशेष शुभकामनाएं. मेरा सवाल ये है कि जो पैसिव फंड्स हैं क्या उनकी पृष्ठभूमि आप थोड़ा बदलते हुए देख रहे हैं? मुझे याद है मैंने ठीक 1 साल पहले 25 दिसंबर 2023 को ये सवाल धीरेन्द्र जी से पूछा था कि पैसिव फंड के लिए उनका क्या मानना है. तो उन्होंने कहा था कि पैसिव फंड में अभी एक्टिव फंड में काफी स्कोप देखते हैं. पर क्या आप उसको बदलता हुआ आप देख रहे हैं 2025 में, या फिर वो भी सेम है? और 2025 के लिए आप क्या निवेश के रिगार्डिंग कुछ रेजोल्यूशन बनाने के लिए कुछ नई एडवाइस या कोई नई राय दे सकते हैं? देखिए, जो आपका पहला सवाल था, मैं ये कहूंगा कि जो एक पैसिव फंड्स है वो अनडाउटेडली बहुत तेजी से इन्वेस्टर अट्रैक्शन पकड़ रहे हैं उनकी सिंप्लिसिटी और लोअर कॉस्ट की वजह से. हम लोगों का ये कहना है कि जो लार्ज कैप आपका स्पेस है वहां पे बेहतर रहता है कि आप पैसिवली मैनेज फंड ले लें, क्योंकि वो उनका एक्सपेंस रेशियो कम रहता है. और एक एक्टिवली लार्ज कैप फंड आमतौर पे पैसिवली मैनेज फंड को बीट करने में या बेंचमार्क को बीट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं काफी समय से. बट वहीं अगर हम लोग बात करते हैं आपका जैसे मिड कैप या स्मॉल कैप का स्पेस है, तो वहां पे आज भी अभी भी एक्टिवली मैनेज फंड्स को ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि वहां पे आपका जो यूनिवर्स है, खासतौर पे स्मॉल कैप जो है, वहां पे यूनिवर्स बहुत बड़ा है और वहां पे एक फंड मैनेजर के जो स्किल्स होते हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छा रहेगा, वो चुनने में आपको लंबे समय में ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं. बाकी आपका जो अगला सवाल था 2025 की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए, देखिए उसमें मैं केवल ये कहूंगा कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम लोगों की सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम लोग अपना एक जो भी गोल है उसके हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से एक प्लान बनाए और उस पर डिसिप्लिन तरीके से निवेश करते रहे, उसमें डटे रहे.
हर ऐसे साल में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमारा, क्योंकि एक नया साल शुरू हो रहा है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बदलनी नहीं चाहिए। ये आपका जो एक गोल है उसके हिसाब से आपके एसेट एलोकेशन डिसाइड कीजिए, आपका जो रिस्क है उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए अपना प्लान, उसमें बने रहिए। हाँ, एक स्ट्रैटेजी अगर है तो बस ये है कि आपको डिसिप्लिन तरीके से, भले ही मार्केट बीच में नीचे आए, आपको डटे रहना है, अपनी SIPs चालू रखनी है। मनोज जयपुर से हमारे साथ हैं। मनोज, क्या सवाल है आपका म्यूचुअल फंड्स के बारे में? नमस्कार सर। नमस्कार जी, पूछें सवाल। हाँ सर, मेरे 6-7 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है और हर म्यूचुअल फंड में करीब 3-4 फोलियो है सर। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं इन सारे फोलियोज की वैल्यू एक साथ ना जान के पर्टिकुलर कुछ फोलियोज की वैल्यू, कुमुलेटेड वैल्यू एट ए डे मतलब जानना चाहूँ कि भाई आज इन सब फोलियोज की क्या वैल्यू है, कुछ सर्टेन फोलियोज का, तो उसका क्या तरीका है सर? आप अपना MF सेंट्रल पे लॉग इन कर सकते हैं। वहां पे आपको पूरा का पूरा आपका जो भी है फंड हाउस वाइज और स्कीम वाइज पूरे के पूरे पोर्टफोलियोज दिखाएंगे। तो वहां पे आप अपना चुन सकते हैं कि आपको कौन से 3-4 फोलियो को साथ में देखना है, आप वो कर सकते हैं। बल्कि अगर आप चाहे तो आप उन फोलियोज को कंसोलिडेट भी कर सकते हैं, वहां पे 3-4 फोलियोज को मिला के अपना एक फोलियो भी बना सकते हैं। And we have a next caller from Mumbai. We have Ravi joining in. Ravi, thank you for calling in Market Month. Please ask your question. हेलो, नमस्कार मार्केट मंत्रा की टीम को और एक्सपर्ट को भी नमस्कार। सर, मुझे जानना है कि जो अभी म्यूचुअल फंड में एक्टिव लोड जो है वो 1 साल के भीतर अगर लेते हैं तो कितना लगता है, और 1 साल के बाद लेते हैं तो लगता है कि नहीं लगता है? और दूसरे मल्टी कैप फंड के बारे में जानना था, कम से कम 3 बताइए। रवि जी देखिए, जो एग्जिट लोड है ये हर स्कीम का अलग होता है। आमतौर पे देखा गया है कि जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स होती है, जैसे फ्लेक्सी कैप हो गया, उनमें नॉर्मली में अगर आप 1 साल के अंदर एग्जिट करते हैं तो कुछ लगता है। ये हर स्कीम का अलग अलग होता है। कुछ स्कीम्स में ऐसा होता है कि अगर आप अगले 6 महीने में या 2 महीने में 10% से ज्यादा विड्रॉ करते हैं तो लगता है, कुछ में 1 साल के लिए होता है। ये हर स्कीम का अलग होता है। तो जो सबसे एक सही तरीका है कि आपकी जो ये स्कीम है जिसमें आपने निवेश किया है, इसकी जो फैक्ट शीट है या SID है, आप वहां पे देख सकते हैं। नहीं तो आप वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे जाके उस फंड का पेज खोलिए, या फिर आप उस फंड हाउस की वेबसाइट पे भी जाइए, वहां पे भी आप खोल सकते हो और वहां पे आपको हर स्कीम का एक एग्जिट लोड दिख जाएगा कि कितना है। बट ये हर स्कीम का अलग होता है। और जो दूसरा आपका सवाल था मल्टी कैप फंड्स को लेके, देखिए मल्टी कैप फंड्स अच्छे हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। इनका मैंडेट होता है कि मिनिमम 25% लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इनको निवेश करना होता है। आमतौर पे देखा गया है कि ये बाकी का 25% ऑन एन एवरेज लार्ज कैप में निवेश करते हैं, तो इनका कुछ 50-50 का स्प्लिट हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 50 मिड कैप एंड स्मॉल कैप और 45-50 लार्ज कैप में। तो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो के लिए अच्छे फंड्स हैं, आप इनमें निवेश कर सकते हैं। हरीश फरीदाबाद से हमारे साथ हैं। हरीश जी, स्वागत आपका। क्या सवाल है? नमस्कार सर। जी नमस्कार, पूछें सवाल अपना। सर मेरे कहना है कि सर ये स्मॉल कैप मेरे को इन्वेस्ट करना है उसमें, तो मेरे पास 3 नाम है। एक तो क्वांट का स्मॉल कैप है, और बंधन का स्मॉल कैप है, और तीसरा निपॉन का। मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा फ्यूचर इसका? आपका टेन्योर कितना है? कितने समय तक? 5 to 10 ईयर। 5 to 10 ईयर, एक लंबे टेन्योर के लिए करना चाहते हैं आकार। देखिए, आमतौर पे जब भी आप स्मॉल कैप जैसे फंड में निवेश करते हैं तो फिर ये कहा जाता है कि आपका जो टेन्योर है कम से कम 7 से 10 साल को होना चाहिए। आपने क्योंकि 5 साल बीच में बोला, तो इसलिए मैं ये सबसे पहले हाईलाइट करना चाहूंगा। स्मॉल कैप्स की खासियत ये है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न देते हैं। जैसे कि अभी भी आप देख रहे हैं वो अच्छे, कुछ पिछले समय से काफी अच्छा चल रहे हैं। बट वहीं पे जब अगर कभी मार्केट में गिरावट आती है तो जो स्मॉल कैप्स है इनमें सबसे ज्यादा शार्पर डिक्लाइन भी आता है। अगर आप पिछला हिस्टोरिकल डेटा उठाकर देखेंगे तो फिर 2008 में जब मार्केट गिरी थी तो एक नॉर्मल स्मॉल कैप फंड 60% भी गिर गया था। यानी कि अगर उसमें किसी का 100 रुपया लगा हुआ था तो वहां पे आपकी वैल्यू गिर के 40 रुपये हो गई थी। तो स्मॉल कैप में निवेश करिए, जरूर करिए, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में करिए। आपके पोर्टफोलियो का 15 से 20% रखिए
उससे ज्यादा रखना सही नहीं होगा। और बाकी का क्वांट आपने बीच में नाम लिया, क्वांट स्मॉल कैप फंड का नाम लिया। देखिए, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो क्वांट है उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एक अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजी है। वो आमतौर पे जो फंड हाउसेज एक स्ट्रैटेजी यूज करते हैं बाय एंड होल्ड, या फिर जो बहुत पहले के जो इन्वेस्टमेंट गुरुज है जैसे वॉरेन बफेट है, ये सब है, उन लोगों का ये मानना है कि एक कंपनी के बारे में पता करिए, खरीदिए और लंबे समय तक उसमें बने रहिए। लेकिन जो क्वांट है वो अपना एक क्वांट ड्रिवन मॉडल चलाते हैं और उसके बेसिस पे शेयर्स खरीदते बेचते हैं। इस वजह से इनके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा चर्निंग होती है। तो ये स्ट्रैटेजी अभी पिछले कुछ 3-4 साल से अच्छा कर रही है। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो इन्होंने अभी मार्केट का सिर्फ एक ही फेज देखा है पिछले 3-4 साल का, जो कि ऊपर जाता रहा है। तो बाकी फेजेस में कैसा करेगा वो कहना भी थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें थोड़ा अमाउंट डालिएगा। बाकी का आप और अच्छे फंड्स के अगर मैं आपको नाम बताऊं तो SBI स्मॉल कैप अच्छा फंड है, कोटक अच्छा फंड है, DSP का स्मॉल कैप फंड भी अच्छा है। नवीन दिल्ली से होंगे हमारे अगले कॉलर। बहुत बहुत स्वागत नवीन जी, सवाल पूछ लें प्लीज। नवीन जी, आपके कनेक्टिविटी में कुछ समस्या है। जब तक अगले कॉलर के पास चलें, हम ये देख लेते हैं कि अगले सप्ताह बाजार की, यानी कल जो बाजार खुलेगा उस पे कैसे निवेशकों की नजर रहेगी और बाजार किस दिशा में बढ़ सकता है। Absolutely, Harsh. Talking about our next story about markets next week. After recovering a bit of losses last week, the domestic markets are likely to focus on economic data like fiscal deficit, infrastructure output, PMI data for India, the US and China, India's monthly auto sales data and global cues. Globally, next week, investors will keep an eye on the weekly jobs data and monthly vehicle sales numbers from the US. Apart from that, final manufacturing PMI numbers from several nations, including US, Japan, China and Eurozone for the last month of 2024 will also be watched. On the domestic front, the fiscal deficit, the infrastructure output for November, as well as external debt numbers for the third quarter will be announced on December the 31st. Further, bank loan and deposit growth for fortnight ended December 20th and foreign exchange reserves for week ended December 27th will be released on January the 3rd. हार्दिक आ चुके हैं हमारे साथ दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका हार्दिक, सवाल पूछ लें। आपकी आवाज भी स्पष्ट नहीं आ रही है हार्दिक। I think Hardik, you should switch off the radio station in your particular room in which you are right now. Switch it off or move to another room and then please give us a call. Otherwise this relay will keep happening. अगले कॉलर के पास चलना पड़ेगा। देव, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हेलो जी, सवाल पूछ लें। हाँ, ये म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर कौन होता है और ये आपके म्यूचुअल फंड में बास्केट क्या चीज होती है और इसके तरीका कैसा होता है? क्योंकि ब्रांच बैंकों में जाते हैं तो वहाँ कुछ तरीके से समझाते हैं, पर इसका कोई एक ऐसा ऑफिस होता है जहाँ आके हम म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करना चाहें बिल्कुल कर पाएंगे? बिल्कुल। और अगर हम एक साथ इकट्ठा गोल्ड खरीद के रख दे तो ये बेटर रहेगा नहीं? बहुत आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आकार, बास्केट क्या है, फंड मैनेजर कौन होते हैं और कैसे निवेश करें? देखिए, जो ये आपका म्यूचुअल फंड होता है, बेसिकली इसमें होता क्या है, जो फंड मैनेजर है ये एक फंड हाउस अलग कंपनी होती है जिनका काम होता है नए नए म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च करना, और एक इनको पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल कहते हैं, जिसमें कि जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को इसमें निवेश करके और उन लोगों के लिए पैसे मैनेज करना। तो यहाँ पे जो मैनेज करता है वो फंड मैनेजर होता है और ये फंड हाउस सिलेक्ट करता है। बाकी बास्केट का यहाँ पे बेसिकली मतलब होता है एक पोर्टफोलियो। आमतौर पे देखिए, ये कहा जाता है कि जब भी आप निवेश करते हैं, खासतौर पे जब भी आप इक्विटी में निवेश करते हैं, तो केवल एक कंपनी में पैसे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उससे होता है कि उस कंपनी की परफॉर्मेंस पे आपके पूरे पैसे निर्भर हो जाते हैं। तो बास्केट यानी कि पोर्टफोलियो, यहाँ पे क्या होता है कि एक से ज्यादा कंपनीज का पोर्टफोलियो होता है। आमतौर पे 30-40 कंपनी का स्टॉक्स नॉर्मली होते हैं एक इक्विटी फंड में, ज्यादा भी होते हैं और कुछ फोकस फंड्स होते हैं जिसमें से थोड़े कम भी होते हैं, बट आमतौर पे इतने होते हैं। तो क्योंकि वहां पे आपका पैसा एक से ज्यादा कंपनी में लग जाता है तो आपका रिस्क डिवाइड हो जाता है, वहां पे हर कंपनी के स्टॉक्स में थोड़ा सा बढ़ जाता है। उन सब में आप
केवल एक ही एसआईपी इंस्टॉलमेंट से निवेश कर पाते हैं, इसलिए उसको कह देते हैं कि वो आप एक बास्केट में लगा रहे हैं। बाकी कैसे निवेश करना चाहिए, देखिए आपके पास दो तरीके होते हैं। आप शुरुआत में जैसे अगर बैंक ब्रांच से गए हैं, आप एक किसी की सहायता ले रहे हैं एडवाइजर की, तो आप वहां से उनके थ्रू इन्वेस्ट करिए, शुरुआत कीजिए। बट इसमें मैं ये कहूंगा कि एक तो आप केवल एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कीजिए, आप लमसम इन्वेस्ट मत करिएगा। और थोड़ा ध्यान रखिएगा, बैंक्स में जब भी जाते हैं तो आमतौर पे वो आपको म्यूचुअल फंड के नाम पे कहीं दफा एक यूलिप बेचने की कोशिश करते हैं, तो उनसे आप जरा ये ध्यान से पूछ लीजिएगा कि क्या इसमें मुझे इंश्योरेंस भी मिल रही है। अगर वो कहते हैं कि हाँ, तो आप समझ जाइएगा कि वो म्यूचुअल फंड नहीं है, आपको उसमें निवेश नहीं करना। आप एक प्योर म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कीजिए, एसआईपी के जरिए करिए और लंबे टाइम के लिए कीजिए, कम से कम 5 साल के लिए। शुरुआती तौर के लिए आप में भी एक छोटी रकम से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आप कंफर्टेबल हो पाए। कुछ महीने करके देखिए, 7-8 महीने आप उसको समझ पाएंगे, उसको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, फिर आराम से आप उसमें अपना निवेश बढ़ाइएगा। Our next caller is Pankaj ji from Delhi. Pankaj, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Pankaj, I apologize, but your voice is not audible. Can you please switch off the radio? Yes, now we can hear you. Pankaj? तो मेरा सवाल ये था कि जैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में, लेकिन आजकल मैं जैसे देख रहा हूँ तो जैसे आता है निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर एसबीआई इंडेक्स फंड, ऐसे करके बहुत सारे फंड आते हैं। और जब हम शेयर मार्केट में जाते हैं वहाँ पे करने के लिए, वहाँ पे एक ETF करके भी आता है, और दोनों में ही एसआईपी करने का ऑप्शन होता है। तो जो म्यूचुअल फंड कैटेगरी में इंडेक्स फंड या निफ्टी नेक्स्ट 50 करके आता है, इसके और ETF के क्या डेंजर है, मतलब क्या रिस्क है, एनालिसिस अगर करें तो कौन सा सेफ होता है? या देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे जो आपने बोला इंडेक्स फंड हो गए, निफ्टी नेक्स्ट हो गए या ETF हो गए, ये लोग एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे कि आपने खुद नाम बोला निफ्टी नेक्स्ट या नॉर्मल सेंसेक्स। तो यहाँ पे भी जो आपका सेंसेक्स के अंदर की पूरी कंपनीज होती है, उस प्रपोर्शन में निवेश किया जाता है। जैसे सेंसेक्स 30 कंपनी से बनता है, निफ्टी 50 से बनता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, वो आपका पहली 50 कंपनी के बाद की अगली 50 कंपनियां होता है। तो यहां पे भी आपको एक पूरा वही बास्केट मिलेगा। और ये कंपैरेटिवली आप इनको कह सकते हैं कि एक एक्टिवली मैनेज फंड से थोड़ा सा इधर कम रिस्क रहता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि एक एक्टिवली मैनेज फंड में जो एक ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, इन द सेंस कि फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टॉक में कितना रुपया लगाना है, मगर यहाँ पे वो केवल जो एक आपका इंडेक्स बना हुआ है, जैसे सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, उसको रेप्लिकेट करता है, एकदम उसको डुप्लीकेट करता है। तो इसके 2-3 फायदे और नुकसान होते हैं। एक तो देखिए, सबसे बड़ा जो फायदा है, ये वाले फंड्स आमतौर पर बहुत ही सस्ते होते हैं, इनका एक बहुत ही एक्सपेंस रेशियो कम होता है। नुकसान एक तरीके से आप इनमें ये कह सकते हैं कि एक जो एक्टिवली मैनेज फंड में ज्यादा रिटर्न का पोटेंशियल होता है, वो आपको यहां पे नहीं मिलता है, क्योंकि ये केवल मार्केट जितना देगा। बट वहीं पे एक यहां पे ये भी फायदा है कि अगर हम लोग देखें कि एक्टिवली मैनेज फंड में किसी फंड मैनेजर का कॉल रॉन्ग हो जाता है, तो वहां पे एक रिस्क होता है मार्केट से कम पैसे लेने का भी, लॉस होने का भी। यहां पे वो रिस्क नहीं होगा, ये एकदम मार्केट जितना ही कहेगा। इंडेक्स फंड और ETF दोनों ही आपके इंडेक्स को रेप्लिकेट करेंगे। फर्क है तो केवल इतना कि जो एक इंडेक्स फंड है वो एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह चलेगा, और जो ETF है वो एक शेयर के तरह आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू ही ट्रेड होगा। तो अगर आपको ETF में निवेश करना है, उसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट हो। बट इंडेक्स फंड के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, आप उसमें नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। हारिस दहिया हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए। दहिया साहब, पूछ लें अपना सवाल आज का। सर नमस्कार। First thing is, I want to compliment the Market Mantra team for doing a great job for the investors in educating them. थैंक यू सर। अपने रेडियो वॉल्यूम को कम कर लें, वो आवाज गूंज रही है, और फिर सवाल पूछ लें। Just give me a second. Hello. जी पूछें, सवाल पूछें। Sir, my question is that in a bullish market or rising market, the good strategy for a long-term investment is buy on the dips. What is the best strategy in the falling market or in a bearish market? What should be the strategy for investing for a long-term investor?
I would say the best strategy would be not to try and time the market. You just make out your investment plan, decide on an asset allocation, see what's good for your goal, particularly where you want to invest, and stay disciplined. Do not try to time the market, because we really don't know when there is a dip, if it is actually a dip or whether it will fall further. And likewise, if it's a market rise, whether it will rise further or not. Our next caller is Mr. Prem Pujari from Faridabad. Welcome to the show, sir. Please ask your question. नमस्कार जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। SIP क्या होता है म्यूचुअल फंड में, और ये हम ब्रांच में गए थे तो हमें कुछ ऐसी इंश्योरेंस वाले कोई स्कीम बताई जा रही थी, क्या वो यूनिट ही होता है जो आप अभी हमें बता रहे हैं? वो कहते हैं कि साल में इतने पैसे जमा कीजिए और रिटर्न में आपको इतना पैसा मिलेगा, 25 साल तक का है कोई उनका हिसाब किताब था, 12 साल तक देने, उसके बाद नहीं देने, रिटर्न आपको मिलता रहेगा। उसी को आप यूनिट बता रहे हैं, क्या वो यूनिट के और आपकी इंश्योरेंस में इंक्लूड है ये दो? प्रेम जी, हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपका सोचना एकदम सही है। जो आपने बताया, अगर वहां पे इंश्योरेंस साथ में मिल रही है तो वो एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। ये एक हाइब्रिड प्रोडक्ट होता है, कॉम्बिनेशन होता है इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का। लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है कि यहाँ पे जो एक एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है इंश्योरेंस की, ना आपको पूरे तरीके से वो मिल पाती है, और साथ ही में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होती है। बैंक वाले इसको आमतौर पे ज्यादा पुश करते हैं क्योंकि उनका इससे कमीशन, जो एक लिंक्ड कमीशन होता है, वो उनको थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। बट हमारी सलाह ये रहेगी कि इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए आप एक नॉर्मल टर्म प्लान लीजिए, प्योर टर्म प्लान जिसको कहते हैं। वो कंपैरेटिवली बहुत ही सस्ता होता है। उसमें एक आमतौर पे एक 35 साल की उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर आपको 15-17 हजार रुपए के प्रीमियम में 1 करोड़ का प्लान आराम से अंदाजन मिल जाता है जी। और निवेश के लिए आप केवल म्यूचुअल फंड्स में कीजिए। SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और ये एक तरीके से जो आप ऑटोमेटिक वे में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, कि आपके बैंक अकाउंट से एक चुनी हुई डेट पे चुना हुआ अमाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट होके उसमें इन्वेस्ट हो जाते हैं, उसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP का नाम दिया गया है। और टर्म इंश्योरेंस के लिए ये भी सुझाव है कि उम्र के जितनी जल्दी हो सके पड़ाव पर, कम पड़ाव पर आप अगर ले लें तो आपका प्रीमियम पूरी जिंदगी उतना ही रहेगा, वो नहीं बढ़ता है, और हर साल उसे आप जमा करते रहें। सयाल साहब के पास जाने से पहले बता दें कि विदेशी निवेशकों ने दिसंबर महीने में अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। विदेशी निवेशकों ने 16,675 करोड़ रुपए इक्विटी में लगाए, जबकि 5,352 करोड़ रुपए डेट मार्केट में निवेश किए हैं। इससे पहले नवंबर महीने में विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजार से 21,000 करोड़ रुपए से अधिक बाहर निकाले थे। अक्टूबर के लिए आंकड़ा 94,000 करोड़ रुपए से अधिक का था। सितंबर महीने में सबसे ज्यादा 57,724 करोड़ रुपए इक्विटी बाजार में लगाए गए। इस साल अब तक अगर नेट निवेश की बात करें तो 1,656 करोड़ रुपए इक्विटी बाजार में विदेशी निवेशकों ने लगाए हैं, और 1,12,410 करोड़ रुपए विदेशी निवेशकों ने डेट मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं। सयाल साहब के पास चलेंगे, बहुत कम समय बचा है, जल्दी से सवाल पूछ लें। नमस्कार जी, मार्केट में पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, दो म्यूचुअल फंड का बता दीजिए, 2 एक के लिए 2 एक के लिए। जी बिल्कुल ठीक बात है, पहली बार कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, कौन से में करें ताकि सुरक्षित हो? आप ICICI प्रू का इक्विटी एंड डेट और DSP का इक्विटी एंड बॉन्ड या मिराय सेट का हाइब्रिड इक्विटी फंड ले सकते हैं। इनमें SIP के जरिए ही निवेश कीजिएगा। बिल्कुल, आज के लिए इतना ही, समय अब खत्म हो रहा है मार्केट मंत्रा का। तमाम श्रोता हमसे जुड़े, आपने सवाल पूछे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और खास तौर पर हम धन्यवाद देना चाहते हैं आकार रस्तोगी को, जो म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट है। आप स्टूडियो में आए, बातचीत की, लोगों के सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आकार। थैंक यू। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। And before we close, the reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi urges Indian entertainment and creative industry to be a part of the WAVE Summit next year.
domestic markets to focus on auto sales data and global markets for Q's next week, and foreign investors pump in over 22,000 crore rupees into the Indian capital market in December so far. आज के लिए बस इतना ही। कल शाम 6:30 बजे मार्केट मंत्र के एक नए एपिसोड के साथ आपसे फिर हम मुखातिब होंगे, और कल बाजार भी 2 दिन की छुट्टी के बाद खुलेगा। जैसा कि हमने बताया, बाजार की नजर बनी रहेगी ऑटो सेक्टर के आंकड़ों पर और ग्लोबल क्यूज कैसे होते हैं उस पर। और कल सोमवार के दिन भी कॉलर्स आप हमें फोन कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।